for this beautiful day when we remember a very beautiful life. We just want to thank you that you gave all of us the privilege of having and sharing Haven Didi as a part of us for the years that she was here with us, and now she's with you. And we start this remembrance of her with a lot of joy, a lot of love, a lot of thanks, and thankfulness in our heart on her birthday. As Manik Bhaiya said, she continues to live and she will always be because she's a part of us. We start this prayer meeting in your name and we commit and submit the rest of the proceedings into your precious hand. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you and God bless you, Ratna. Since we are using technology, we are on online, so I would request you all to join me. Somebody saying something. So I'll share my screen and play a song, so you all can join in with the song with your mics muted. क्योंकि अगर आप माइक अनम्यूट कर देंगे तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा. तो जिन जिन लोगों को सबको गाना आता है वो प्लीज़ अपनी माइक म्यूट करके यू कैन ऑल जॉइन इन एंड सिंग वेर एवर यू आर. वी ऑल विल सिंग द सॉन्ग टुगेदर. राइट, आई विल जस्ट शेयर माई स्क्रीन. Just show me a thumbs up that you can hear the music. Okay. Great. Thank you. वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम. हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते. हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला. हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा. वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम. मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया. मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया. अब तुम संभालो यीशु जी, भव सागर में हो खोया. अब तुम संभालो यीशु जी, भव सागर में हो खोया.
करते हैं वंदना करते हैं हम वंदना करते हैं शक्ति दे दो मुझको मेरा नहीं कोई शक्ति दे दो मुझको मेरा नहीं कोई जीवन को मेरे दे दो गाऊं मैं तेरे गीत जीवन को मेरे दे दो गाऊं मैं तेरे गीत वंदना करते वंदना करते हम वंदना करते हम हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं वंदना करते हैं वंदना करते Yeah. Once again we thank the Lord for this day. और इस वक्त I'll request Rajiv to please say a few words and then we'll move ahead. Rajiv, over to you. Please unmute your mic. Hello, am I audible? Yes, very much. Okay, because I can't hear you, Manik. Not at all? It's like the volume is not there. My volume, I don't know if the others can hear you or not. My volume is full. One second. Can you hear me now? No. No? That's very strange. Is your mic, the volume up? Your device? Uncle, you can rejoin. Can the others hear you? Can you all hear me? Yes. Yes. Someone can hear me? Can you all? Yes. Yeah, Ratna can hear Yes. me. So Rajiv, please rejoin. I think I'll just sign out and sign in again. Just give me 1 minute. Do that. We'll wait for you. Okay. I'll request you all to please switch on your cameras since you are here. So please switch on your camera so that we can see you. Please switch them on, everybody. Hello, Rashmi. Shagudla Masi. Good evening. Yeah, Rajiv, can you hear me now?
Hello. Yes, Rajiv, can you hear me? Yeah, I can hear you clearly. I'm sorry for that glitch. That's okay. Yeah. Please go ahead. Well, I just would like to thank all of you who have joined us for this meeting. As you know, that it's Heman's birthday today, and we are celebrating it. To tell you the truth, today I don't have much to say, and I don't have words actually. As what I can say today, since the morning I've just been sitting and kind of thinking about the whole process which was going on last year, and I don't want to repeat it. Let us just stay with the good memories today. So I was just wanting to welcome all of you. That's it today. I don't have much to say today. I'm sorry for today. Carry on, Manik. Yeah. Thank you. We do understand the state of mind that all of us are in. And we just want to thank God that He is, till date, till today, He's kept all of us here so that we can all get together and thank Him once again. We all have we all have to go from here. We all know that none of us is going to stay here. और कोई ऐसा दिन नहीं जाता और मैं तो ख़ास तौर से कह सकता हूँ, मैं आई एम श्योर आप लोगों की भी एक्सपीरियंसेस रहे होंगे पिछले 1 साल में, कोई ऐसी रात नहीं जाती जब मुझे उसका सपना नहीं आता, नॉट अ सिंगल नाइट. So that is the state of mind that we all have been going through for the last 1 year. But हम ये जानते हैं कि हमारा विश्वास जो है खुदा पर है और उसके उस वादे पर है, in that hope that she is with the Lord. I can say that for sure. I'm repeating myself from the last year that during the last days I've had very beautiful conversations with her. जबकि उसने अपने लिए दुआएं करी, अपने गुनाहों को माना, अपने आप को सरेंडर किया खुदा को. And I am so sure of that after that she is definitely with the Lord, and we thank the Lord for that. तो खुदा का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने हमको जिंदगी ज़मीन पर रखा है ताकि हम खुदा का शुक्र कर सकें और इकट्ठे होकर के दीदी को याद कर सकें. दर्द हम सबको होता है. We all are humans. We do feel pain. We feel agony. But the hope that we have in our Lord, that takes us forward. और हम उसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं. इस वक्त मैं खास तौर से रिक्वेस्ट करूंगा अपनी बेटी को, मिशेल मसीह को, कि वो आकर के एक छोटा सा गीत गाए, बिकॉज माय सिस्टर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ माय डॉटर. और जो लोग एयर इंडिया में हैं वो ये जानते हैं कि एयर इंडिया में मिशेल मसीह जो है उसको वो हेमन की बेटी मानते थे. उनको ऐसा लगता था कि मिशेल जो है वो हेमन की बेटी है. तो ऑन दिस डे स्पेशली I would request my daughter to please sing a song. Michelle. Praise the Lord. सबको जय मसीह की. मैं ज्योति से यीशु की गाना गाऊंगी क्योंकि मुझे लगता है कि वो बुआ का फेवरेट गाना था. ज्योति से यीशु की दूर है अंधियारी, फूल
जीवन तू, तन मन तू, सब धन तू, मालिक तू, जीवन तू, जल थल में, बादल में, शक्ति तेरी कर जन में, कण कण में तेरी परी, छवि तेरी न्यारी, फूल उठी मन में, तेरी फवारी, ज्योति से यीशु की, मार सहे, क्रूस चढ़े, रक्त बहे, कुछ न कहे, मार सहे, क्रूस चढ़े, रक्त बहे, कुछ न कहे, कृपा तेरी, मुक्ति मेरी, तेरा वचन सच है, पाप से प्रभु जी, प्रीत तेरी न्यारी, फूल उठी मन में, तेरी फवारी, ज्योति से यीशु की, शब्द तेरा गूंज उठा, जाग उठी तेरी लगन, शब्द तेरा गूंज उठा, जाग उठी मेरी लगन, सप्त सुमन प्यार की धुन, झूम उठा सारा प्रेम में डूब गई ये दुनिया सारी, फूल उठी मन में, प्रेम की फवारी, ज्योति से यीशु की, दूर है अंधियारी, फूल उठी मन में, प्रेम की प्रभारी, ज्योति से यीशु की। Thank you. Thank you, Michelle. Just 1 second. Hello. जी So thank you again, Michelle, and once again, thank God for our family and the legacy of our family. ये दीदी का फेवरेट गाना था। जब भी हमारे यहाँ प्रेयर मीटिंग में आती, जब भी हम प्रेयर मीटिंग में मिलते थे, तो she had to sing this song. So thank you so much. अब ये वक्त है, I'll request Uncle Rathore to please share the message that he has for us today. And please unmute yourself, Uncle, so that we can hear the word of God from you. Uncle Jaswant Rathore. Thank you very much, Manik. Now everybody can hear me? Okay. Yes, we can hear you. All right. Okay, Rajiv. So we greet all of you, each one of you, in the name of our Savior, Lord Jesus Christ. And today we have assembled to give thanks for the life of Heman. Rather, we are celebrating the life of Heman.
And as Manik was rightly saying, that each and every moment, each day we remember, even all of you will agree with me, that she is not here physically present with us, but she is always present in each and every moment. वो लोग जो प्लेजेंट होते हैं, वो लोग जो खुशी को फैलाते हैं, वो लोग जो अपने जीवन से खुदा को, उसके प्यार को प्रदर्शित करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, जहां जाते हैं वो खुशी, जॉय, हैप्पीनेस फैलाते हैं. Can I go ahead? जी अंकल, प्लीज कंटिन्यू. ओके, ऑलराइट, ओके. तो वो लोग हमेशा साथ रहते हैं, वो कभी जुदा नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी याद, उनकी प्रेजेंस, उनकी वो बातें हमेशा हमारे जहन में रहती हैं, हमारे साथ रहती हैं. और खुदा का शुक्र करते हैं हम ऐसी जिंदगी के लिए. और जब मैं ऐसे सोच रहा था तो मुझे छोटा सा कोरस याद आ रहा था. वैसे मुझे बहुत गाना तो अच्छा नहीं आता, लेकिन वो इस किस्म से है, इट्स नो लॉन्गर दैट आई लिव बट क्राइस्ट दैट लिवeth in me. He lives, Jesus is alive in me. It's no longer I that live, but Christ that liveth in me. और हेमन ने अपनी जिंदगी के अंदर एक क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ जो है वो बिताई है. आज जब हम उसका सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थडे, let's have a small word of prayer. Heavenly Father, we want to thank you and praise you for this day that you have given. Thank you for this assembly. Thank you for this gathering. Thank you for this prayer meeting. And we feel thy holy presence, Lord. I pray for the life of Heman and all those who are present here. They love Heman and Heaven, love each one of them. When we meditate on the word of God, Lord, I pray myself that Holy Spirit, you help me and guide me so that each word that comes from my mouth may glorify your name. In precious name and our Savior, Lord Jesus Christ of Nazareth, we pray. वैसे तो आज क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से आज का जो संडे है, आज संडे है, और ये है असेंशन संडे. ये वो संडे है जब हम इस बात को याद करते हैं कि यीशु मसीह रिजरेक्शन के बाद 40 दिन इस धरती पर रहे, अपने अपोस्टल, अपने डिसाइपल से मिले, उन्हें प्रोत्साहित किया, उनके विश्वास को बढ़ाया. वो बेचारे भटक गए थे, बहुत निराश हो गए थे, और 40 दिन तक वो उनसे मिलते रहे आफ्टर रिजरेक्शन. और उसके बाद जो है 40 दिन के बाद वो माउंट ऑफ ऑलिव, जो आज भी विराजमान है इजराइल में, और वहां से वो उनके साथ वो लास्ट अपीयरेंस है, जिसे अपीयरेंस कहते हैं, लास्ट अपीयरेंस है खुदावंद यीशु मसीह की. और उनके देखते 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 वो आसमान पर उठा लिए गए विद अ अलौकिक बॉडी, विद अ ग्लोरीफाइड बॉडी जो है वो वहां से उठा ली गई. लेकिन आज के लिए, आज जबकि हम एक ऐसे माहौल में हैं, ऐसे गैदरिंग में हैं, हम लोग अपने बहुत प्रिया का, अपनी उस बेटी का आज हम जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं. हम एक मैं स्क्रिप्चर पढ़ूंगा, अगर जिनके पास, आपके पास बाइबल है. ये है जॉन की किताब, द बुक ऑफ जॉन या गॉस्पेल ऑफ जॉन, उसका 17th चैप्टर और उसकी 1st वर्स से 5th वर्स तक. यूहन्ना की इंजील उसका 17वां अध्याय, उसकी पहली आयत से उसकी 5वीं आयत तक, जहां पे इस प्रकार लिखा है, Jesus spoke these words, lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son also may glorify you, as you have given him authority over all flesh, that he should give eternal life to as many as you have given him. And this is eternal life. What is eternal life? That they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I have glorified you.
4th वर्स पढ़ रहा हूँ. I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do. And now, Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world was. ये वो मंजर है जब यीशु मसीह लास्ट सपर लेके माउंट जायन में एक जगह है, अभी भी है वो जगह, द अपर रूम, और वहां से वो अपने लास्ट सपर को अपने चेलों के साथ आके और वो किद्रोन की वैली से होते हुए, किद्रोन की ब्रुक से होते हुए वो गतसमनी बाग में आए हैं. और उससे पहले गतसमनी बाग के आने से पहले उन्होंने ये दुआ करी है. दिस इज द लॉन्गेस्ट प्रेयर रिकॉर्डेड बाय एनी गॉस्पेल राइटर. और ये 3-fold प्रेयर है. ये इस पहला जो मैंने पढ़ा है वो जीसस प्रेज फॉर हिमसेल्फ, देन जीसस प्रेज फॉर हिज डिसाइपल्स एंड जीसस प्रे फॉर ऑल द बिलीवर्स, जिसमें हम सब यहाँ बैठे हैं उनके लिए है. ये तीनों के लिए अलग अलग है, लेकिन जो आज मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ और वो ये है जो जीसस ने अपने लिए दुआ करी. और लिखा उसमें कि उन्होंने ये, उनके एक तरीका था यीशु मसीह का कि जब वो दुआ करते थे तो हमेशा आसमान की तरफ आंख उठा के दुआ करा करते थे. और उसमें अब क्या है कि 3-3.5 साल की मिनिस्ट्री उन्होंने करी. उसके बाद जो है वो अब समय आ गया है, दिखाया कि समय आ गया है जाने का. वो एक प्लान के साथ आए थे, वो एक मिशन के साथ आए थे, वो एक पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव के लिए आए थे. और अब वो कह रहे हैं कि अब पिता मेरा समय आ गया है. और थोड़े देर के बाद ही will be arrested in the garden of Gethsemane, then he will be taken to different courts, and the next Friday he will be crucified, and then he will die, buried, and then he will be resurrected. तो ये सारी चीजें उनको मालूम है. तो यहाँ पे ये दुआ कर रहे हैं अपने लिए, चेलों के लिए और मेरे और आपके लिए. What a beautiful God we have, ना? He was praying before he was leaving, he was praying. तो अपने लिए जो दुआ कर रहे थे, मैं इसको सोच रहा था कि परमेश्वर आपने लिखा है कि जो लिखने वाले लिखा है उनके लिए कि आपने मेरे कुछ तमाम, लिखा दूसरी आयत में कि पहले लिखा है द आवर हैज कम, घड़ी आ गई है, ग्लोरीफाई योर सन, अपने बेटे की महिमा करे ताकि बेटा आपकी महिमा करे. ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई का मतलब स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसको परमेश्वर की ग्लोरीफाई करने के लिए एक बहुत बड़ी जो है ये योजना है, जो योजना थी. और उसमें वो कहते हैं कि आपने, मैंने तो ग्लोरीफाई करा, अब द टाइम हैज कम बिकॉज नाउ आई विल बी क्रूसिफाइड एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई गो टू दैट प्लेस until as do go over there will be no salvation. तो नजात नहीं होगी. अगर यीशु मसीह सलीब पे नहीं जाते तो नजात नहीं होती. और इसके लिए यीशु मसीह जो है खुदा से दुआ कर रहे हैं और कहते हैं कि आपने मेरे को, दूसरी आयत में, आपने मेरे को तमाम दुनिया पे, तमाम इंसान के ऊपर अथॉरिटी दी है और आपने उनकी जिंदगियों को मेरे को दिया है. काहे के लिए दिया है? तीसरी आयत कहती है एंड सो दैट दे हैव एटर्नल लाइफ. आपने मेरे को इस दुनिया में भेजा. किसके लिए भेजा? ताकि जो मनुष्य जाति है जो ये अलग हो गई थी, वो मैं जाके आपको रिवील करूं और हमेशा की जिंदगी के बारे में बताऊं. कहते हैं एंड दिस इज द एटर्नल लाइफ, दे शुड नो यू दैट यू आर द ट्रू गॉड एंड जीसस क्राइस्ट whom you have sent. बहुत सफाई से पूरी मिनिस्ट्री को बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का एक बड़ा मकसद वो ये था कि वो परमेश्वर के बारे में बताएं. He has revealed to us God. अजीजों, अगर खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आते तो हमको परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं होता. और हमारे हाथ में जो आज मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, जो आपके हाथ में ये जो परमेश्वर का वचन है, वो नहीं होता तो हमारे साथ क्या होता, हम कहाँ होते, किससे जानते. लेकिन ये परमेश्वर का वचन जो है हमारे हाथ में है, जिसे हम पढ़ सकते हैं. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो 2000 साल पहले बातें करी, आज हम उसको पढ़ सकते हैं. ये मिरर है, ये दर्पण है, ये हमसे बातचीत करता है. इट इज ए लिविंग वर्ड ऑफ गॉड. और उसमें ये कहता है, जो चौथी आयत है जिसको मैं खास आपके सामने बयां करना चाहता हूं, उसमें लिखा आई हैव ग्लोरीफाइड यू ऑन द अर्थ
I have finished the work which you have given me to do. जो काम आपने मुझको सौंपा था मैंने उसको पूरा किया। बहुत कम इस दुनिया के अंदर आदमी होते हैं जो उस काम को दिया जाता है तो उसे कंप्लीट करते हैं, अकम्प्लिश करते हैं, पूरा करते हैं। छठे कलमे में जब हम गुड फ्राइडे को पढ़ते हैं तो उसमें छोटा सा कलमा इट इज फिनिश्ड, और ये खुदावंद यीशु मसीह को ये उर्फ प्रिविलेज था कि जो काम दिया गया था उसने अकम्प्लिश किया है। बहुत आसान काम नहीं था। इट वाज द एफर्ट ऑफ डेविल दैट जीसस क्राइस्ट शुड नॉट गो ऑन द क्रॉस, वो सलीब पे ना जाए। और बहुत सी दिक्कतें परेशानी जो दुनिया में हमारी इंसान को होती हैं खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में सब उनको सहा है। और उसने कहा कि जो काम आपने मुझको दिया है उसको मैंने पूरा किया, बाखूबी से मैंने पूरा किया है। और हे पिता अब तुम मुझे ग्लोरीफाई कर ताकि मैं तुझे ग्लोरीफाई करूं। खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जब मैं यहाँ पर धरती पे आया, और फिर उसने एक बात अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं, अपने वजूद बता रहे हैं। 5वीं आयत में क्या कह रहे हैं? एंड नाउ ओ फादर glorify me together with yourself with the glory which I had with you before the world was। जब दुनिया बनी थी, कायनात बनी थी, जब मैं तेरे साथ था और अब मैं वापस लौट के आ रहा हूं, जो कि आज का दिन हम सेलिब्रेट करते हैं that he was ascended and he sitting on the राइट हैंड ऑफ गॉड। ये याद कर रहे हैं, मेमोरी लेन करने जा रहे हैं कि मेरी वो ही ग्लोरी थी, मैं तो आपके पास था, मैं यहाँ पर आया एक पर्पस के लिए, आपको बताने के लिए। आई टुक द फॉर्म ऑफ ए मैन, इस मांस और इस खाल और इस हड्डी के रूप में मैं यहाँ पे आया उस काम को करने के लिए। अब कुर्बानी की जरूरत नहीं, अब इंसान के लिए मैंने एक रास्ता खोला है। नाउ मैन कैन गो टू यू एनी टाइम एवरी टाइम, क्योंकि मैंने वो काम को पूरा किया। और जो मैं देख रहा था, मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूं, जब हम कहते हैं वर्क, टास्क, काम, जब इसको खत्म करने का काम दिया, ये पूरा करने का काम जो है ये बड़ी एक वर्च्यू है, एक क्वालिटी है। और मेरे और आपके परमेश्वर ने, सेवियर ने उस काम को यहाँ पर पूरा किया। इसे हम कहते भी हैं कैसे, इसको, इस दुआ को जो है इसे हाई प्रीस्टली प्रेयर कहते हैं, जैसे महापुरोहित की प्रार्थना कहते हैं। और ये दुआ ये सब के लिए खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो कर रहे हैं। और मैं इस पूरी जब मैं इस खुदावंद यीशु मसीह की इस प्रेयर के बारे में सोच रहा था, मैं इसके बारे में मेडिटेट कर रहा था, तो मैं हेमन की जिंदगी के बारे में सोच रहा था। I was thinking about हेमन। हेमन की शादी राजीव से हुई। I have attended that marriage, हमने सारे परिवार ने। और जो हेमन के मम्मी पापा हैं, मैंने उनकी शादी भी अटेंड करी। I was a young man that time, और मुझे डिस्टिंक्टली याद है, हम उनको गुरु कहा करते थे, जो या टीचर जो भी आप कहेंगे, कि गुरु जी ने अपनी शादी में ये सितार बजाया था। आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर दैट। और ये पूरी जो लिगेसी एज राइटली सेड कि जो ये गाना बजाना जो पूरे परिवार ने है, ये पूरा उन्होंने पास ऑन किया। और मैं सोच रहा था हेमन की जिंदगी के बारे में कि उसने अपनी जिंदगी को कैसे बिताया। उसने अपनी जिंदगी जो है वो एक ऐसे व्यक्ति की तरह, ऐसे इंसान की तरह बिताई, जैसे लोग कहते हैं ना कि जब जियो तो ऐसे जियो कि सब कुछ तुम्हारा है, जब जाओ तो ऐसे जाओ कि तुम्हारा कुछ भी नहीं। वो एयर इंडिया में काम करती थी। वैसे तो मैं बचपन से उन्हें जानता था, इनको बड़े भाई को, मानिक को, सबको, हमारे सामने सब बड़े हैं। लेकिन जब एयर इंडिया हेमन ने ज्वाइन किया तो एक एफिनिटी सी बन गई थी, क्योंकि आशा जो है वाज वर्किंग आल्सो विद एयर इंडिया। और एयर इंडिया की ये एक सेकुलर वर्ल्ड में वो काम करती थी। और उसके अंदर, एयर इंडिया के अंदर जो काम करती थी वो तो अपना वर्क है। उसके अलावा जो अगर एयर इंडिया की फ्लाइट, न्यू फ्लाइट जा रही है, एयर इंडिया का कोई फंक्शन हो रहा है, क्या वो नेशनल फेस्टिवल हो, 26 जनवरी हो, या वो 15 अगस्त हो, या वो 2 अक्टूबर हो, या अपना दिवाली या क्रिसमस या न्यू ईयर हो,
वो कोई भी फंक्शन जो है बिना हेमन के पूरा नहीं होता था। तो आप कहेंगे कि भाई मेरे को कैसे मालूम कि सारा फंक्शन उसके बगैर पूरा नहीं हो रहा है, मैं तो एयर इंडिया में काम नहीं करता था। मुझे इसलिए मालूम है फ्रेंड्स, दोस्तों, अजीजों, कि इससे पहले जाए हेमन तो फोन आता था, क्या रात का 11 बज रहे हो, 12, 1 या दिन में कोई भी समय, शी यूज्ड टू फोन मी, अंकल मैं वहां जा रही हूं, आप मेरे लिए दुआ कर दो। अंकल आज ये फ्लाइट है, मैं प्रेसिडेंट के साथ वहां जा रही हूं, दुआ कर दो। अंकल आज मेरा इंटरव्यू है इस चीज के लिए, आप दुआ कर दो। फॉर एवरीथिंग। क्या कहेंगे ऐसे जीवन को जो अपनी हर चीज को प्रार्थना के साथ शुरू करे, जो हर चीज के अंदर उसको प्रायोरिटी दे, उसकी प्रेजेंस को महसूस करे। शी वॉज ए टैलेंटेड पर्सन, बड़ी अच्छी टैलेंटेड पर्सन थी वोकल के अंदर, और जो गुरु जी ने है वो सबको सिखाया भी था, इंस्ट्रूमेंट भी सिखाया था, सब कुछ था। और इसलिए वो हर फंक्शन के अंदर उसका एक रोल हुआ करता था, लोग उसको बुलाया करते थे। और उसके साथ जैसे मानिक ने बताया कि हम इसे परी कहते हैं, मिशेल भी जाया करती थी वहां पर गाने के लिए, गुड़िया श्रेया भी जाती थी वहां पे। एक सेक्युलर वर्ड के अंदर एक अपनी जगह को बनाना, ये कोई इतना आसान काम नहीं होता है। सेक्युलर वर्ड के अंदर मैं क्रिश्चियन वर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, अपने फंक्शन की बात, कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंस या मीटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जहां पर वो हमेशा उसका एक स्थान होता था। बहुत से सर्टिफिकेट्स, बहुत सी ट्रॉफीज जो है वो भेजा करती थी मेरे को। तो कई जगह पे ऐसा हो कि जो उसका जहां पर एक स्टाफ को, सारे स्टाफ को इसको होना चाहिए था, सारे स्टाफ को, और वो चले गए और नाइट की फ्लाइट थी और इसने अकेली ने जो है सारी फ्लाइट को हैंडल किया उसको, और हैंडल करके अधूरा नहीं छोड़ा। बाकी सब लोग जो है अपने सोच के कि मेरी नाइट शिफ्ट खत्म हो गई है, अब मेरा शिफ्ट खत्म हो गया, माई ड्यूटी इज ओवर, नाउ आई एम गोइंग। लेकिन जब ड्यूटी ऑफ ए विश्वासी, ऑफ ए बिलीवर, दो ट्रस्ट इन लॉर्ड, जिसका जो मॉडल है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, कि उस काम को पूरा करना है, ड्यूटी बीच में नहीं आती, आवर्स बीच में नहीं आते, सर्विस आती है, नौकरी नहीं आती। बहुत से लोग नौकरी के लिए, तनख्वाह के लिए काम करते हैं। हेमन जो है वो काम करती थी सेवा के लिए, उसके लिए हर वर्क जो है वो इंपॉर्टेंट था, हर वर्क जो है वो वर्शिपिंग द लॉर्ड था। और इस तरीके से वो अपने उस परमेश्वर की महिमा करती थी। जैसे यीशु मसीह ने कहा, मैंने खुदावन, मेरे पिता, जो आपने मुझे काम दिया मैंने उसको पूरा किया है। आई हैव ग्लोरीफाइड व्हाट वी डू, द टास्क दैट हैज बीन गिवन in office or in project or in school and wherever we have the work is given। तो जब हम उसे कंप्लीट करते हैं तो हम अपने परमेश्वर को ग्लोरीफाई करते हैं औरों के बीच में। हम वहां पे सरमन तो नहीं दे सकते, बाइबल तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन हाँ हम क्या कर सकते हैं, अपने काम के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, परमेश्वर को वो प्रेज दिला सकते हैं, परमेश्वर के नाम को वो बहुत ऊंचा करा सकते हैं। हम लोग जब हेमन एयरपोर्ट पे होती थी तो जो भी जो उनके जान पहचान, बहुत बड़ा सर्कल है उनका, मदद करने को बहुत आगे रहती थी। वेरी हेल्पफुल पर्सन। मुझे याद है मैं बैंक में काम करता था तो हमारे पास स्टेनोटाइपिस्ट थे मिस्टर वर्मा, तो कहने लगे वो सब सोचते हैं भाई क्रिश्चियन है तो सब कुछ करा सकते हैं। उन्होंने कहा मेरी बेटी का एडमिशन जो है इधर था सेंट एंथनी जो है कॉन्वेंट फर्स्ट क्लास में, तो मेरे पास कोई सोर्स नहीं था, लेकिन हाँ मेरे पास एक सोर्स था। आई टॉक टू हिम, नर्सरी का था और उसने वहां पर बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा रसूख रखती थी। शी वॉज हैविंग अ वेरी गुड रैपर और रिलेशनशिप विद एवरीबॉडी, वेरी रिसोर्सफुल पर्सन। एट दिस एज शी वॉज ए वेरी रिसोर्सफुल पर्सन। उस बच्ची का एडमिशन हो गया तो काफी दिनों के बाद मैंने फिर बैंक में ट्रांसफर और जगह पे हो गया, तो काफी दिनों के बाद वो वर्मा जी मिले, कह रहे साहब मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं तो ध्यान भी नहीं रहा था मेरे को, मेरी बेटी नर्सरी में उस स्कूल में गई थी और पूरा सीनियर सेकेंडरी करके वो पूरे स्कूल से निकली। मेरे को तो कोई एक ही बेटी थी, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं हुई, पूरा का पूरा एक जगह पे हो गया। उसने
धन्यवाद करा, मेरा नहीं करा, उसने परमेश्वर का करा। परमेश्वर क्यों करा? क्योंकि उसकी एक बेटी ने उसकी मदद की। जो एयरपोर्ट पे जाया करते हैं, अगर किसी का आपका एक्सेस बैगेज हो और या वेट लिस्ट हो, ह्यूमन ड्यूटी पे है, अगर ह्यूमन ड्यूटी पे है, नो प्रॉब्लम, शी विल डू वॉट एवर शी कैन डू, शी विल ट्राई हर लेवल बेस्ट। ये वो जीवन है जो दूसरों के लिए जीते हैं और अपने जीवन से परमेश्वर को ग्लोरीफाई करते हैं। उस परमेश्वर को उसकी क्या, अगर देखा जाए तो वो तो महान परमेश्वर है, उसका विराजमान है, उसका सिंहासन उसका स्वर्ग है और धरती उसकी चौकी और तमाम दुनिया और ये सोलर सिस्टम और चांद सितारे और उसका स्प्लेंडर मैजेस्ट देख भी नहीं सकते। ऐसा है वो परमेश्वर, मेरा आपका परमेश्वर। लेकिन उसके बावजूद जब उसके बेटे और बेटियां ये काम करते हैं, अपनी ड्यूटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हैं, द ट्रस्ट वर्दीनेस, द वे यू कंडक्ट, इट इज ब्यूटीफुल, बी ग्लोरीफाइड। ये मेरे और हम मेरे सब के लिए, जो मेरे साथ इस समय है, हम सब के लिए, मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा सबक है। वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसकी यादें हमेशा रहेंगी। वो वर्मा जी कभी भूलेंगे नहीं। और ऐसे बहुत से केसेस हैं जो मैं बता सकता हूँ। और इस समय मैं राजीव के लिए खास दुआ करता हूँ। इज ए वेरी ब्रेव पर्सन, ही हैज गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 2 चिल्ड्रन और पूरी तरीके से बाखूबी से वो निभा रहे हैं अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। श्रेया के लिए करता हूँ मैं, हम दुआ भी करते हैं, हम उनको ध्यान रखते हैं कि वो पूरी तरीके से जो है वो अपनी स्टडीज को, अपने जो उसकी माँ ने, उसकी मम्मी ने एक ड्रीम देखा था, शी यूज्ड टू टॉक टू ऑल ऑफ अस, इस तरह से लेके जाती थी। शी वाज ग्रूमिंग अ डॉटर टू बिकम समथिंग, कुछ बने जिंदगी के अंदर। और हम धन्यवाद करते हैं ऐसे माँ और बाप के लिए जो अपने बच्चों के लिए ख्वाब देखते हैं, विजन देखते हैं, दर्शन देखते हैं। जरूरी है माँ बाप के लिए। और हम दुआ करते हैं कि श्रेया वन डे शी विल बी ए गुड पर्सन, ए गुड ह्यूमन बीइंग, ए गुड ऑफिसर, ए गुड आर्टिस्ट। और ऐसे हम बॉबी के लिए दुआ करते हैं। फॉर गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। राजीव के लिए दुआ करते हैं। नाउ दिस मिशन दैट हैज बीन गिवन, दैट ही हैज टू अकम्प्लिश व्हाट हैज बीन लेफ्ट ऑन दिस अर्थ टू बी डन बाय हिम। मैं इस पूरे परिवार के लिए एक आयत छोड़ना चाहता हूँ। ये सभी के लिए है, राजीव आपके लिए भी और जितने भी लोग सुन रहे हैं। ये मैथ्यू की किताब, उसका 5वां अध्याय। ये एक्चुअली में बियाटीट्यूड जो है, मुबारकबादियां, ये वो है जो वो मुबारक पहाड़ है, ब्यूटी माउंट ऑफ बियाटीट्यूड कहते हैं इसको। कभी इजराइल में जाने का मौका मिले आपको, गलील के रीजन के अंदर है, तबगा रीजन में, तो वहां पे उसमें पूरी वो बताते हैं खुदावंद यीशु मसीह, मुबारकबादियां। और उसके बाद जो है, उसके बाद वो एंड करते हैं और वहां पे ऐसे करते हैं, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, यू आर द लाइट ऑफ द अर्थ। इस तरह करके वो एंड करते हैं उसने अपने से बियाटीट्यूड्स को, मुबारकबादियों को। और मैं 16वीं आयत जो है, 16th वर्स जो है, मैं आप सबके लिए रखता हूं, अपने लिए भी और राजीव आपके लिए भी और जितने भी लोग हैं परिवार के। मैं जानता हूं उन परिवार के सारे लोगों के लिए खुदा इनको बहुत इस्तेमाल करे, सेवा के लिए कर रहे हैं सब लोग। हम दुआ कर माने हैं, बड़े इज इन द सर्विस। हम बड़े भाई जो हैं कनाडा में हैं, जितने बच्चे हैं इनके, इन सब ने अपने बच्चों को बड़े अच्छे कलाकार, आर्टिस्ट बनाए, वो लेगेसी छोड़ी है। खुदा इनको इस्तेमाल करे। द 6th वर्स से मैथ्यू, मत्ती की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत, लेट योर लाइट so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. God bless you. God bless all of you. थैंक यू सो मच अंकल, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि राठौर अंकल इज वन ऑफ दोज पीपल, एंड आशा आंटी ऑफ कोर्स, जब दीदी की डिलीवरी हुई थी, श्रेया वाज बीइंग बोर्न, शी वाज अ प्रीमेच्योर चाइल्ड, श्रेया गुड़िया, तो हम सब बहुत टेंशन में थे। मैं, राजीव, हम सब हॉस्पिटल में थे। और उस वक्त डॉक्टर्स, आपको पता है, हॉस्पिटल में अलाउ नहीं करते हैं किसी को भी लेबर रूम में। राठौर uncle came in and he said that he wants to go into the labor room and pray for him. और आप यकीन नहीं मानेंगे,
The doctors allowed. And he was the only person who went over there in the hospital and prayed for her. And ये भी शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कितने दिन गुड़िया जो है, श्रेया जो है, नर्सरी में रही थी, because she was a premature child. And every now and then this family used to come and pray for her. So हम खुदा का बहुत शुक्र करते हैं अंकल के लिए. और हम सब जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनको मैं फिर से बता दूं कि दीदी की जो जॉब थी एयर इंडिया में, that was because Asha aunty called her up and said there's a job and I want you to apply over there. And she insisted that she goes for this interview. And as a result, Didi got a job in Air India. So हम जितना खुदा का शुक्र करें इस फैमिली के लिए उतना कम है. और आज की डेट में, तो चलो पुरानी बातें हो गई हैं, आज की डेट में, today, for the past 1 year, Asha aunty has been looking after Gudiya like her own daughter. मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आशा आंटी has been in touch with Gudiya every day, day-to-day basis, which is not a mean thing, which is not a small thing. तो हम खुदा का बहुत बहुत शुक्र करते हैं इस परिवार के लिए, इस फैमिली के लिए, जो कि हमेशा हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा और हमको अपनी दुआ में रखा. जैसे अंकल ने बताया कि हमेशा दीदी अंकल को फ़ोन करती थी कि मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे लिए दुआ कर दो. तो खुदा का बहुत बहुत शुक्र है. एंड गॉड ब्लेस यू अंकल, गॉड ब्लेस यू आंटी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. और इस वक्त आई थिंक आई वुड रिक्वेस्ट श्रेया, since you've talked about her, to please come forward, and she wants to recite a poem for her mother. Shreya, over to you. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Praise the Lord. I have a small poem for my mother. My mother, my angel. Once upon a time, an angel, I held my hand. She wiped away my tears and helped me understand our time on earth is brief. There are lessons to be learned. Each precious day God gives us, another page is turned. Every chapter full of memories, times of joy and tears, triumphs and defeats. Through every passing year, she loved us unconditionally, always by our side. When no one else would listen, in her we would confide. With gentle words of wisdom, she led us on our way down the paths of righteousness. If we ever we did stray, she saw the light in everyone and gave with no regrets. Always from her heart, let's not forget, angel comes in many forms. For me, it was my mother. With love, I cannot say in words, there will never be another. Every day I turn the page, in my heart will remain everything she taught me as I stroll down memory lane. Thank you, God, for giving. Help, my Lord, for giving me the most priceless of all treasures. Help, my Lord, to keep alive her memory here forever. I pray that I can someday be everything she hoped I would, that she is smiling down from heaven, knowing she did good. As we gather here today, there's no ending to her story. Another chapter has begun, full of grace and glory. God's called her to his heavenly home, part of his great plan. Although it may be hard, we all must understand. Faith is what we hope for, things we cannot see. Heaven is promised to all of us if we only believe. My mother, my angel. Thank you. Very good. That was beautiful. Thank you, Shreya. God bless you, beta. Very nice. छोटी तो है नहीं थी poem, लंबी थी. But anyway, it was a beautiful poem, and thank you so much for sharing that with us. And God bless you again. I would also request Neeraj, my brother, to please say a few words at this time. Yes, Shreya, you're on mute. Yeah. I think I've sent a message to you. You're mute. Yeah, go ahead. Am I okay now?
Yeah, yeah. Yeah. Okay, good. Well, I don't know what to say. There's so much to say. But in very brief, I can only say one thing, that my sister was the biggest achiever in our entire family. And me personally, if I talk my relationship with my sister, I think she was one of my biggest supporters as well. The way she supported me in so many different things, not only regular school and other things, but my music as well. And I think, I mean, we are all very sad that she left us so early. But at the same time, I also feel very privileged and honored that I had a sister like her, and who not only cared for us, but also did far more than I would expect for a person like me, for anyone to do anything. But all I can say about my sister, I don't know what to say actually. I'm just making up things. I think she went too early, but she went in peace at the end, and she didn't go through a lot of trouble that I see a lot of people going through these days and previously as well. But I just hope that she's at a very good place, happy, and we can all, we all have to go. So when we leave this planet or whatever it is, and I'd like to be with my sister, with my mother, with my father. We should all get together again at some point somewhere, and just be together and happy. Well, that's it. I love my sister. Yeah, thank you. God bless you. And we all love her. That's why we all are here. I'm just repeating myself. Thank you, everybody. And before we go towards the closing prayer, I just want to remind all of you that on 25th of May, it's the day she left us. So we'll be having another online prayer session, and wherein we all, quite a few of us, can share our experiences with her, with Eamon. So 25th of May is another day that we'll be getting together. There will be a lot more, many people on that day. Today we kept it only a family affair. So on 25th, please put a reminder on your calendars that we will be getting together. 25 मई को हम दोबारा मिलेंगे, जिस दिन दीदी हमको छोड़ के गई थी. तो उस दिन के लिए आप प्लीज अपने शेड्यूल में नोट कर लीजिएगा. And before I go for the closing prayer, I also want to thank Priya, Nirja, Madhu, all our friends. Madhu is a childhood friend. They studied together. Nirja and Priya, she worked with, and I love your background, Nirja. The background, even Asha Aunty has put a beautiful background. Thank you so much, and that reminds us of her every now and then. Thank you so much. और इस वक्त मैं request Shakuntala Masi to please lead us in towards a closing prayer. Shakuntala Masi, please unmute yourself, or shall I do that? Shakuntala Masi is my mom's sister. There were 6 of them, and she's the only one we have now. आंटी आपका म्यूट नहीं हुआ है, अनम्यूट नहीं हुआ है. रेड बटन होगा, उसको दबाइए प्लीज. रेड बटन होगा. हेलो. हाँ, ठीक है, ठीक, आ गई आवाज. It's a wonderful day when we are here in remembering my darling daughter. बहुत प्यारी बेटी, बहुत अच्छी बेटी, हर एक के लिए खड़ी होने वाली, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, सचमुच she was very helping hand for everyone. और हम बराबर उसको बहुत मिस करते हैं. बहुत प्यारी बेटी थी और चली गई हमारे पास से, पर हम उसको अपनी दुआओं में याद करते हैं. आइए हम दुआ करेंगे उसके लिए. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आदर और महिमा और सम्मान के योग्य प्रभु यीशु मसीह में मेरे अब्बा, धन्यवाद के साथ आपके पास है इस घड़ी में, जबकि हमारी बहुत ही प्यारी बेटी इस वक्त आपके पास है, हम जानते हैं, और आपके हुजूर में वो बहुत आनंद में है प्रभु. ये भी हमारा विश्वास है प्रभु.
पर हम जो इस दुनिया में हैं, हम उन छोटी छोटी घड़ियों को याद करके प्रभु अपनी उस मेमोरीज को याद रखते हैं प्रभु, जिंदा रखते हैं प्रभु। इस वक्त हम उसकी आत्मा के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपके पास है और सुरक्षित है प्रभु। जितने भी हम पीछे इस वक्त इकट्ठे हैं प्रभु, हम सबको प्रभु आपने हौसला दिया और एक प्यार दिया है, और उसके द्वारा हम सब एक प्यार के बंधन में बंधे हुए प्रभु। होने दीजिए कि ये प्यार सदा सदा कायम रहे और हम एक दूसरे से मिलते रहें और एक दूसरे की खुशियों में दुखों में शामिल हो सके प्रभु, ताकि हम आपकी महिमा कर सके, आपकी बड़ाई हमारे द्वारा हो, क्योंकि आपने कहा एक दूसरे से मिलते रहो, एक दूसरे से प्यार करो प्रभु। और यही संदेश है हमारा प्रभु। इस वक्त एक एक जन को जो यहाँ पर इकट्ठे हैं, सबको आपके पवित्र हाथों में देते हैं, सबकी रक्षा आपके नाम में होने पाए प्रभु। इस वक्त जबकि बुरे दिन है, बहुत बुरी घड़ियां हैं, कहीं से भी कोई बुरी खबर हमें कहीं पर भी मिल जाती है प्रभु, हम सबको आपके पवित्र लहू के बारे में कर देते हैं, सबकी रक्षा आपके नाम में होने पाए, एक को भी शैतान छूने ना पाए, खासकर राजीव को और बेबी को, छोटी बेटी को और बेटे को प्रभु हम खासकर आपके हाथों में देते हैं। और आज का दिन जबकि सचमुच एक उसके होते हुए मैं आनंद में मनता था, आज हम उसकी यादों में मनाते हैं, उसको हम एक दफा फिर आपके हाथों में उसकी आत्मा और रूह को दे देते हैं प्रभु। हम सब पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। जब हम अलग होते हैं तो प्रभु एक दफा फिर मिलने की आस में हम फिर इकट्ठे हों, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारी महिमा आदर सम्मान आपको देते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, सुनो कबूल कर लीजिए। आमीन आमीन Amen. Thank you, Auntie. Thank you, everybody, once again for joining in today. मुझे चाची भी नजर आई थी, शम्मी मुझे नजर आ रही है। Thank you, everybody, and like I said, 25th May, the day Didi went to be with the Lord, we'll be getting together again. We'll be intimating you accordingly. जिस भी वक्त होगा वो प्रे सेशन, और हम सब दोबारा मिलेंगे यहाँ पर। Thank you everybody again, and now you can unmute yourself. If you want to talk to each other, please go ahead. Feel free to do that. Rajiv, if you want to say something, please go ahead. Yeah, looking forward to the 25th now, and I'm very sure that everybody will be there. There will be more people that day. Today it was an affair of the family and the very close ones, which we consider that were very close to Heyman and to us also, the privileged few. And 25th we'll have, as I said, more people. For the 25th program, if anybody would like to maybe recite a poem or say something about her, that will be the day. So if you have anything in mind which you would like to share, that you can do it on that meeting. Again, as Manik said, that we'll be giving you the exact timing and things like that later on. But please, if you would like to pitch in, you're most welcome. Again, I would like to thank everybody who joined us for this remembrance and for celebrating her birthday. Thank you, everybody, from my side and the kids. It was, I was kind of uptight, but I'm feeling much better after this meeting, after seeing all of your faces. It's good. Thank you so much. Thank you. Thank you. God bless you. God bless you. God bless Thank you for organizing this meeting. I can also see my friends here, Priya and Nirja. Hi. And Neeraj over there. Nice to see you. Shakuntla, Mosi. Yes, how are you? It's nice. Oh, nice to see you. Nice to see you. Yes, nice to see you. And God bless you. It's good. And Manik, thank you. I just believe you have organized it because you've always been in the forefront. And it's good. I mean, thinking about Heyman, somehow I could never sort of relate her to anything but the fact that she's still there, bubbly and, you know, full of spirit and around us. That's how I She's remember her definitely every with day. us. Yeah,
every day She is with us. it's like that with us. So Yes. yes, we will congregate again on the 25th. But Rajiv, I want to just tell you that it's the strength that comes from just remembering what she was and how she did everything, and that is what sort of brings in the confidence of going on in life. And I really appreciate what has been said. That in fact, now when I talk to Gudiya and I talk to you, I feel that you guys are doing a wonderful job of trying to, help each other in life. So that's a blessing. That's a blessing. You're together as a family, and just remember her that she's there. She's there, and she is the strength still. Her memory is a strength. So let's remember her for the vivacity she had and the liveliness she had in her. That's it. It's great to have seen all of you again. Look forward to meeting you again on the 25th. Thank you, Auntie. Thank you so much. God bless you. Thank you, Manik. It was very nice. Thank you, Uncle. Thank you. I think we should. God bless you. Yeah, and we'll be sending you the messages for 25th later on. Thank you so much, everybody, for joining in. God bless you all. And may God bless you. God. Thanks, Manik. Thanks, Manik. Thanks. Thank you, Manik. Yes, thank And you. in fact, thanks to Neerja for informing me at the last minute, and I'm honored that I'm Thank you, Neerja. Thank you. considered as part of the family. I'm with her, and I just can't imagine. Still, I feel that she is around me. Yep. And we have been planning that I will be going to Neeraj. We'll be singing with him. So I still feel that yes, I'll be going and meeting Neeraj, and I'll be singing with her. Yeah. So thanks to Neerja, thanks to Rajiv, thank you, Manik. She is Thank you, definitely Tina. with Thank us. you for joining in. Thank She you is so not much. gone anywhere. Thank you. All right, then I think I should. Yeah, we'll see you on 25th. All right, I'll see you later. Thank you, Masi. Thank you again. Shami, thank you so much for joining in. Sanjeev, thank you so much. Love you. Celia, she's there. Neerja, thank you. Thank you, Neerja, again. Thank you. Bye-bye. I'm going to end the meeting now. Thank you. Bye-bye. Good night. And God bless you. God bless you.